Ya Juliet Sangmala, tene diri video lecture na nga tay embryo sac is korla silcheno, yang na megaspore is korla silcheno, yang tena tuksla nga tay iba yang ming jang zeranok teba zanok female gametophyte. ठीक मिराले सो निजा थंगमाला इतु योटो कि nga tay female nga tay जुगी स्कोरला reproductive organ स्कोरला जब nga tay silchane we had the pistil, that means you had the stigma, tena sting bone ngata style tene testing ngata chion pin le ovary on pin halale sonspa ovary nangku ga ngata chion pin ovules on pin halale chion pin these are your ovules ठीक रहले sonspa tene ovule nangku ga ngata chion pin zena ngata tangi yuma chinmo chuste diagram masta na in but ovule nangku ga ngata chiot yakene embryo sac ठीक रहा तेने ओव्यूली शेप नंग काजुगा को अरेंजमेंट यो तेने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स चीची इन ते उन इस हनमा लेक्चर्स गुने नंगा ता जो छारतनो ठीक रहले सो बेसिकली ngata ई लेक्चर ना एम्ब्रियो सैक स्कोला सिलचेनो yang nangatay megaspores korla silcheno kabi nangku ga ngatay tene fertilization bokete nang chanok tene basically ngata fertilization skor sakpa leb gospa te sakpe fi ngata embryo sac kinangku kadu karua egg cell boduk kaw khetanga ta female gamete in to kazo form charuk tene ka located duk ngata te viskorla silin kazo form charuk pongi isang hanma lecture na ngi ja share chostut kavina ngata फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स इट इज ऑफ मेगास्पोर आपका कैसे बनता है हाउ आर दीज सेल्स फॉर्म्ड यहाँ पे कैसे एंटीपोडल्स बनते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे सिनर्जिट्स और एग सेल कैसे बनता है इविस्कोला yang सेपरेट वीडियो लेक्चर जियोत अगर मजिक साथ ना प्लीज ते बोस्तो शिखेले तेस तिने ये लेक्चर बोजिक साथ ओके फर्स्ट लेट मी रब दिस ऑफ ओके Now, tangeja हमेशा nga tange spin ki end ngi zono halale micropyle na chalazal end ziste terengi isang hanma diagrams gunena हमेशा micropyle bo khato gastaste chotpin chalazal end bonga tai yoga chokslastaste chotpin iturak mirale but ina I diagram na ngi je samado ki chalaza khato gachi chostanok micropyle yoga chi chostanok zena terengi je itu choshik ovule structure khas kar anatropous ovule tigrale chapishinge ka draw chostan Anatropous ovule nga tayo jab draw chotsane ni siya use ito yodo yukuste nga tayo nucellus yung pinle tinete nang kuga nga tayo embryo sac yut ki khalale sons pasang now see Ivo nga tayo E type of ovule pen this is known as anatropous ovule. So anatropous ovule नंग कुआ ये चिलो यहाँ पे आपका 180 डिग्री पे कर्वेचर होता है. That means nga tayo का ovule वो खट्टांग आयोंगो सा त्यो थुल ललतास्ते babs pasang. Then this is the only reason that now micropyle is towards this end. Micropyle वो nga tayo यो achos lastaste funically dun la lepste duk. ठीक रहले तेने चलाजा वो खेतना खत्तो achos la योंदो. ठीक रहले ते फेंगे जतन कंफ्यूज मशको चिक माइक्रोपाइल बोते फेंगा ता इका योगा थोंस्तनो चलाजा बो खतवा थोंस्तनो ठीक रहले आई होप दिस इज अंडरस्टूड ओके नाउ तायांग चलक चिक ngi ja हमेशा ngal lang जस्पिन जब ngata मेगास्पोर फॉर्मेशन छाचा ने तेने ते विनंग कुक ने ngata का जो माइटोसिस सुम सोंस्ते माइटोसिस 1 2 3 सोंस्ते तेने ngata न्यूक्लियाई ग्यात दो दैट पिन 4 न्यूक्लियाई दो दैट पिन का विनंग ने sum be khetanang ata antipodals do chuktuk sum be na khetanang ngis po synergids do tuk chik chik excel do tuk tene baki nucleus ngis halale kao junga center choks la yongste polar nuclei two polar nuclei yang na iguna ngata polar nuclei zamo halale tene angi ja ito yo do e stage pa e embryo sac pa ngata chizarat pen this is known as 8 nucleate yang 7 cell structure ठीक है मेरा यहाँ पे आपके 7 सेल होते हैं आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर्स कि यहाँ पे 7 सेल्स हैं 1 2 3 ऊपर नीचे 1 2 3 6 तेने चिक चिक खेतना इजुंगी सेंट्रल सेल छिन मोबो सोंस पसंग 7 एंड देन अगर न्यूक्लियस गुंस 3 छाना ऊपर 3 नीचे 3 6 और बीच में 2 8 सो दिस इज एन 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर ठीक मिराले आई होप यू अंडरस्टैंड I hope you remember this.
Now ta e embryo sac ina nga ta sta chikpo tene there are various there are different types of cells you find here ठीक राले I chalazal and chokes langatanchi dukle cell sum duk cell sumka langatanchi zara nokzena antipodals chi zara nokle this is known as antipodal yana the three antipodals are situated towards the chalazal end ठीक है तेना चोक्स langatai micropylar end ekastana we have three cells chikchingata gya bachin mo jithong dwale which just protrudes out then this is nothing but the egg which is very important egg cell which is required for fertilization ठीक है okay and then along with the egg the other two are known as synergids okay and in the center we have polar nuclei two polar nuclei okay now जस्टे से तुम तक पो कि मुझे यहाँ पे आपको ये बताना है कि all the constituent cells whether be it antipodals be it synergid be it egg cell be it polar nuclei all the cells are interconnected ठीक है इस सेल ना इस सेल सेंट्रल सेल पर कनेक्शन युत क्या सेंट्रल सेल ना एक सेल पर कनेक्शन युत क्या एक सेल ना synergid पर कनेक्शन युत क्या ठीक है लेसोंस पर all the cells are interconnected through plasmodesmata तो आपको पता है एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को आप क्या कहते हो this is your plasmodesmata So all these cells are connected to each other with the help of plasmodesmata. Okay, I hope you understand ki ingatai embryo sac chiksila chipo embryo sac inankua chichi yondo obserkanji. Tirale. Now we will take this up one by one. First, let me just rub this off. Okay. So pasang number one ngatai start chunle. We will start with egg cell ठीक रहा सो आप यहाँ पे लोकेट करो egg cell कहाँ पे है egg cell आपका यहाँ पे है ठीक है सो देर आर थ्री सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड तो उन तीनों सेल में से भी एक जो सेल है आपका वो थोड़ा बड़ा है साइज में ये जो दो सिनर्जिड्स है उसके पीछे दिख रहा है आपको तो दिस इज नोन एज द egg cell ठीक रहा सो pasang now e egg cell nang tene baki synergid ngam po thutte yot kani volvo for example daksai ka diagram mo mal demo jigmi cha samarak but then again agar you egg cell inna tene egg cell ngam po yang chi dugle synergid ngi sang thutte mira synergid ngis ka thukse do sonspa thutte yot kani ngatai volvo khetena e uchi yot kyazna thick yot ठीक है thick है because it contains cellulose okay ठीक है the point of attachment with the wall of synergids so it hama samanga tan chinok these are synergids ठीक है the synergid function chinok mata daksa we will come to that in a minute but ikangi chate ho ha gokos ki egg cell lingyam po thamang iska langa tan chiut kyak synergid jut kyak tene te synergid ngyam po ka jagai ka ko thuks tot wall bo that is very thick due to the deposition of cellulose ठीक है Now, agar ngata sif e egg cell chikpo ngata zuk juste stana, pilo akyon ste zuk juste stana, tene e egg cell inankuga आपको एक वैक्यूल मिलता है ठीक है और बाकी जो दूसरा साइड यूं ये चीज चुस्तनो वैक्यूल चुस्तनो ठीक रहा तेने बाकी इस सेल का जो भी साइटोप्लाज्म होगा साइटोप्लाज्म आपको पता है सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी हला माइटोकॉन्ड्रिया ऑल दो सेल ऑर्गेनेल्स तेने साइटोप्लाज्म वो कहते ना इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द यूं बताएंगे का दिस इज योर चलाजा and this is your micropyle ठीक है सो ये आपका चलाजा की तरफ जो साइटोप्लाज्म जो होगा वो सारा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और माइक्रोपाइल की तरफ ngata वैक्यूल योते ई खोरला साइटोप्लाज्म खेतंग मा न्यून योत्या ठीक रहले ओके सो दिस इज हाउ एन egg cell looks
ठीक रहा मेरा ले सोंस पाई चलाजा छोक्स लंगा ता न्यूक्लियस पॉ योते नो इन्ने का न्यूक्लियस आ योते नो तेने अगर माइक्रोपाइल साइड लास्ताना तेने कोई वैक्यूल वो खेते लंगा ता छिन मोजिक थोनो ठीक रहा ले सोंस पा अगर ई डायग्राम में नास्ताना तेने गा ता एक्सेल बोता सा गया बस सोंस ते दुक ते फियांगा ता इना थो अमिरुक but then you can see the nucleus popping up इकांगा ता थों वाले जो आपको रेड कलर में दिख रहा है that is nothing but your nucleus और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जितना भी होगा आपका इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द चलाजल एंड इन्हें दो वाले चलाजा जो है आपका इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द चलाजल एंड सो माइक्रोपाइल की तरफ अगर मैं इस डायग्राम को नीचे की तरफ बनाऊं इन्ना गोलोक छोक्सला चोना तेने था माइक्रोपाइल जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है और चलाजा आपका ऊपर की तरफ है सो माइक्रोपाइल की तरफ आपका वैक्यूल रहेगा बाकी जितना भी आपका साइटोप्लाज्म होगा वो चलाजा की तरफ रहेगा ओके एंड देन दिस इज योर न्यूक्लियस सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड डायग्राम में कि यहाँ पे जो आपको एक सेल दिख रहा है कुछ इस तरह का होगा ठीक है सो एक सेल इज नथिंग बट योर फीमेल गैमेट which is going to fuse with the male gamete that is the sperm nuclei or sperm nucleus in the fertilization process okay so this is all about your egg cell now we will move on to the synergids ठीक रहा ओके सो जब हम सिनर्जिड्स की बात करते हैं तो यू कैन सी टू सिनर्जिड्स विच आर लाइंग क्लोज टू द एग सेल ठीक रख मेरा ले सो उस पर नाउ सिनर्जिड्स आर ऑल्सो नोन एज हेल्पर सेल्स इनको हम क्या कहते हैं हेल्पर सेल्स और यू कैन जस्ट कॉल देम हेल्पर्स नाउ व्हाई डू वी कॉल देम एज हेल्पर सेल्स क्योंकि ये जो सिनर्जिड्स हैं दे विल हेल्प ठीक है ये सिनर्जिस जो है वो हेल्प करते हैं जब आपका पोलन ट्यूब में से तयांग का लंचिक ने डायग्राम जिचुन जिक सजर अगेन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड देन यू हैव द ओव्यूल ठीक है ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक एंड देन उसके अंदर आपका क्या है एग सेल है ठीक है सो पसंग सपोज यहाँ पे एक पोलन गिरा ठीक है पोलन ही चौनक पोलन ट्यूब आपका बनाता जाएगा यू ऑल नो दिस प्रोसेस ना सोच पसंग उस ट्यूब में आपको पता है यू हैव द टू स्पर्म न्यूक्लियाई एंड देन द ट्यूब न्यूक्लियस ठीक है मैं रख ले नाउ इस स्पर्म न्यूक्लियस पोयोंस दे यहाँ एक्स सेल तक आने के लिए उसको जो गाइड करेगा चीज अनुकूल कोई गाइड जो जैसे लास पोखरते ना माता सिनर्जिड सिनंकुआ एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है विच इज नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटस ठीक रहा ले सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है इन थोंग वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रिक सो इफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस गुन का उनके तना सिनर्जी डिनंको गायोनो दे हेल्प इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग स्पर्म न्यूक्लियस टुवर्ड्स द एग सेल ठीक रहा सपोज यहाँ से आपका पोलन ट्यूब आ रहा है ठीक है पोलन ट्यूब योंस्तेन क्या तो पोलन ट्यूब में आपका स्पर्म न्यूक्लियस भी है ठीक है तो इस स्पर्म न्यूक्लियस को आगे चल लेके आपको एग सेल तक गाइड करना है तो उसको गाइड करने का काम आपका कौन करता है फिलीफॉर्म अपरेटस करता है और फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ सिचुएटेड होता है इट इज सिचुएटेड इन द सिनर्जिड्स ठीक डाले सो दिस इज वन फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स owing to the presence of filiform apparatus in the embryo sac ठीक रहा मेरा ले okay so apart from this synergids have various other functions also ठीक रहा ले yang functions mang po yot kyak sirf sperm nuclear wo guide cho chestik po man pa ni ka chun chun this time it helps in distribution of nutrients मतलब जो भी खाना पहुंच रहा है आपके एम्ब्रियो सैक को उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द एम्ब्रियो सैक वो काम आपका कौन करता है सिनर्जिड्स सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एम्ब्रियो सैक इज विद द हेल्प ऑफ सिनर्जिड्स दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हेल्पर सेल्स ठीक है मेरा ले न्याम्पो दे आल्सो सिक्रीट पोलन अट्रैक्टिंग substances
ठीक रहा। सो ये जो पोलन ट्यूब आपका आ रहा है एग सेल की तरफ, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो सब्सटेंसेस रिलीज होंगी वो कहाँ से रिलीज होती हैं, वो आपका जो है सिनर्जिट्स जो है, आपके दो सिनर्जिट्स वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज असाइन टू द सिनर्जिट्स इनसाइड एन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मेरा रख ले। Okay, tene yang nyampo khete nang there is another function also that it provides mechanical strength. ठीक है, so majorly ngata synergids guna it is rightly called as the helper cells. क्यों? क्योंकि ख्वे खेते नंग it helps the embryo sac, or you can say it helps in the process of the fertilization to take place in a very proper manner. कैसे कि वो एक तो वो न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखता है कि एम्ब्रियो सैक में इक्वली न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट हों, फिर वो सिक्रीट भी करता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पोलन को अट्रैक्ट करे एक्सेल की तरफ. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड अनदर वेरी important function that I told you earlier, that it contains the filiform apparatus. ठीक मेरा. So with the help of filiform apparatus वो क्या करता है कि वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है towards the egg cell, towards the egg cell. ठीक है, so this is the important function that has been assigned to the synergids, and they are rightly called as helper cells. Okay, so next we have okay, so third type of cells are the antipodals. ठीक रहा. So pasang you can see here antipodals, as I told you earlier, they are always located towards the chalazal end. ठीक रहा. जो chalazal end का ngatai chi wanok zena antipodals wano tene antipodals sam wanok zena ngatai generally 3 wanok, but then it depends in different species. ngata embryo sac ang alag type yo kyak tene ka venang antipodals nis चिक सुम या मंगपो या बिल्कुल एब्सेंट, ऐसे भी केसेस आपके हो सकते हैं. ठीक है, मेरा फॉर एग्जांपल आता टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक टिचोचनो का वेना इनोथेरा टाइप. तो इनोथेरा टाइप में आपका जो एंटीपोडल्स होता है इट इज़ एब्सेंट. आपका कंप्लीटली ये एंटीपोडल सेल जो होता है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है. ठीक है मेरा. नाउ ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है, दैट मीन्स उसके अंदर जो भी आपका साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दे आर रिच इन सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, सो दे हैव अ वेरी डेंस साइटोप्लाज्म. ओके, एंड ये डेंस साइटोप्लाज्म होने की वजह से दे टेक पार्ट इन न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग सेल्स. ठीक है, सो ये जो आपके एंटीपोडल्स होते हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक. ओके, सो एंटीपोडल्स का यही एक फंक्शन है कि दे प्रोवाइड नरिशमेंट, और यू कैन से दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक. ओके, सो लास्टली वी हैव lastly we have the central cell. ठीक है, now you can see central cell का नेदुगले इन्हे तांसते. please follow the diagram. ये आपका सेंट्रल सेल है. ठीक है, सो पसंग नाउ सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक. ठीक है, सो एम्ब्रियो सैक में आपका सबसे बड़ा सेल जो होता है दैट इज द सेंट्रल सेल, एंड इट इज लोकेटेड इन द सेंटर. सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये इसका लोकेशन कहाँ पे है, सेंटर है. ठीक है, सो इट इज नोन एज सेंट्रल सेल. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल मदर सेल इन सम केसेस. ठीक है, नाउ यू ऑल नो कि यहाँ पे सेंट्रल सेल के अंदर वी हैव 2 न्यूक्लियस. मैं यहाँ पे डायग्राम में प्लीज देखिएगा, एक ये और दूसरा वाला ये. सो वी हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, विच आर नॉट फ्यूज्ड बट दे रिमेन क्लोज टू ईच अनदर. ठीक है, वन अनदर, वो दोनों साथ में रहते हैं एंड दे आर फाउंड इन द सेंट्रल मदर सेल. ठीक है, तो सेंट्रल मदर सेल जो होता है, या आप कहें इसको सेंट्रल सेल जो होता है, इट इज रिच इन साइटोप्लाज्म.
जस्ट लाइक योर एंटीपोडल्स। ठीक है। सो अब इस सेंट्रल सेल का क्या इंपॉर्टेंस है जना तेने ngata जो आपका फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस, अब जाके जब आपका पोलन ट्यूब जो है एंटर करेगा जब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, उस टाइम पे जो आपके दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, मैं हमेशा आपको बता रही हूँ कि आपके दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में याद कीजिएगा, अगर इस प्रोसेस को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ विजिट माय प्रीवियस लेक्चर्स। सो आपका जो स्पर्म न्यूक्लियाई है जो एंटर करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए एम्ब्रियो सैक के अंदर विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस गाइडिंग इट, तो उस टाइम पे जो भी फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल टेक प्लेस इन द सेंट्रल सेल, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन जो होगा that will take place in the central cell with one of the polar nucleus. So यहाँ पे दो polar nucleus आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक polar nucleus के साथ एक sperm nucleus जो है वो fertilize करेगा और वो zygote बनाएगा। How? ये next lecture में आपको double fertilization पढ़ाऊंगी, वहाँ पे इस process को हम फिर से समझेंगे, ठीक है। But as of now you should understand the roles of different cells that are found in an embryo sac. I hope this is understood. If there is any doubt or any clarification required,